नमस्कार। ओलंपिक्स आला रे। और टोक्यो 2020 ओलंपिक्स की बात करें तो आज खेल का छठा दिन है, 29 जुलाई गुरुवार का दिन। अब तक भारत की झोली में एक पदक आया है। मीराबाई चानू ने भारत को पहले ही दिन सिल्वर दिलाया था, लेकिन आज भारत की प्रतिस्पर्धा बहुत से खेलों में दिखेगी। फिर चाहे आर्चरी की बात करें, जहां दीपिका कुमारी क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। मेंस इंडिविजुअल आर्चरी में आज अतानु दास भी अपनी चुनौती पेश करेंगे। मेंस हॉकी में आज भारत का मुकाबला अर्जेंटीना से होगा। पीवी सिंधु मुकाबला अपना बैडमिंटन में खेलेंगी। गोल्फ के मुकाबले भी होंगे। तो आज बहुत आकर्षण रहेगा। उम्मीद है कि दूरदर्शन स्पोर्ट्स को पर आपको हमारा ये प्रसारण पसंद आ रहा है। मैं हूं अमित अरोरा, मेरे साथ है मेगा। गुड मॉर्निंग। Good morning, Amit, and we hope it turns out to be a good day for India. Although no medal events really today, but then there would be plenty of action that would eventually decide the fate of India's medal tally at the end of the Olympics, because like you mentioned, PV Sindhu too would be in action today and yesterday as well. On day 5 of the events of Olympics, PV Sindhu was in action and registered a win against a Hong Kong opponent from Hong Kong. In fact, sailed through it and won, winning all the 3 clashes during the group stage to progress to the pre-quarterfinals. And like you mentioned, Deepika Kumari too, bringing some good news for India, and that was her victory in round of 62 and round of 32. She's now progressed to round of 16. And along with that, Pooja Rani too shining in boxing. We saw her winning pretty comprehensively against her opponent to proceed to the quarterfinals. So well, the women shining really bright and giving India medal hopes, and they would want to extend it and realize their potential by bagging medals. Absolutely. Well, the hopes and aspirations from the Indian sports lovers is always very huge, and we do expect that India will continue to build upon the momentum they've gathered so far. This is the highest platform of sports, and I'm sure that through the day we look forward to all the action that is going to come our way. So we have a lot of action in store for you, but here is a glimpse of what all is coming up. We've got Arjun Lal Jat and Arvind Singh, the duo, who will be in competition in rowing. Also in contention today would be Anirban Lahiri and Udayan Mane in golf. Now after resumption, golf first made its appearance in 2016 and again in 2020. Tokyo Olympics is making its presence felt. Anirban Lahiri, the experienced professional for India, and Udayan Mane, 30-year-old from Pune, too would be looking to create splatter at the Olympics. Last minute inclusion. बात अगर शूटिंग की करें तो आज निगाहें रहेंगी राही सरनोबत और मनु भाकर पर। सुबह 5:30 बजे ये मुकाबला बेहद दिलचस्प रहेगा। वुमेन्स 25 मीटर पिस्टल क्वालिफिकेशन। हॉकी में इंडिया और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। अगर ये मैच इंडिया जीत पाती है तो उनकी नॉकआउट्स में जगह पक्की बन जाएगी। बैडमिंटन, पीवी सिंधु रियो ओलंपिक्स जब हुए थे तो उन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, और आज सुबह उनका मुकाबला 6:15 बजे। मिस मत कीजिएगा। इंडिया वर्सेस डेनमार्क। आर्चरी मेंस इंडिविजुअल इवेंट में अतानु दास होंगे अगेंस्ट यू चेंग डेंग। 7:31 AM is when you can tune in for this event. The sole male representation remaining for India in archery. MC Mary Kom, 6-time वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियन, वेलेंसिया के खिलाफ मुक्केबाजी का मुकाबला दोपहर तकरीबन 3:30 बजे। Sailing men's skiff, Varun Thakur और गणपति would be in action at 8:35 AM. पानी की लहरों पर सेलिंग बहुत दिलचस्प लगती है। विष्णु सरवनन भारत की चुनौती रखेंगे लेजर रेस में।
सेलिंग में भारत का तीसरा इवेंट लेजर रेडियल में नेत्रा कुमानन 8:35 AM से एक्शन में होगा। और स्विमिंग एक्शन भी होगा, जहां पर केरल भारत से साजन प्रकाश 4:15 बजे शाम को आप मेंस 100 मीटर बटरफ्लाई की हीट्स में इनका प्रदर्शन जरूर देखिएगा। बॉक्सिंग में मेंस कैटेगरी में भारत के लिए अभी तक बहुत सारे गुड न्यूज तो नहीं देखने को मिले हैं। हालांकि विमेन कंटेस्टेंट्स ने काफी इम्प्रेस किया है, लेकिन आज सतीश कुमार के पास मौका है जब वो रिकार्डो ब्राउन के खिलाफ उतरेंगे टू हेल्प इंडिया टेक अ स्टेप क्लोजर टू मेडल्स इन मेंस कैटेगरी 2। और दिन भर जब खेलों का ये मुकाबला हो रहा है तो हमें बेहद खुशी आपको बताते हुए कि साइन लैंग्वेज के माध्यम से भी हम आप तक पहुंचेंगे। इस समय जो इनसेट आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर, उसमें अबुल आस हैं जो आपको साइन लैंग्वेज के माध्यम से खेलों की खबर पहुंचा रहे हैं। वो साइन लैंग्वेज कमेंटेटर हैं और उनके साथ टीम में गगन कौर भी हैं जो कि साइन लैंग्वेज इंटरप्रेटर हैं। लेकिन एक बहुत रोचक बात आपको बताएं, कहते हैं एज कैन नेवर बी अ बैरियर व्हेन इट कम्स टू स्किल, और टोक्यो ओलंपिक्स में वो हम देख रहे हैं, क्योंकि जहां एक और 13 वर्षीय निशिया मोमिजी हैं जिन्होंने कि पदक जीता है। उन्होंने वुमेन्स स्केटबोर्डिंग में गोल्ड मेडल जीता है जापान के लिए। कितने साल की हैं? सिर्फ 13 साल की। और दूसरी तरफ 57 साल के अब्दुल्ला अल रशीदी भी हैं, ये कुवैत के हैं। इन्होंने भी पदक जीता है ब्रॉन्ज मेडल, और ये जीता है स्कीट शूटिंग में। तो 13 years, 57 years, Megha, I also have a chance to win a medal. Absolutely, you should not give up on the hope, certainly. और कितनी जबरदस्त लाजवाब बात आपने बताई। शूटिंग में आपने एग्जाम्पल दिया, कहा जाता है रिफ्लेक्स के बारे में, कहा जाता है मार्जिन ऑफ एरर नेग्लिजिबल है, और ऐसा भी कहा जाता है कि एज के साथ रिफ्लेक्सेस स्लो किए जाते हैं। इन सारी थ्योरीज को कहते हैं ना फ्लिंगिंग इट आउट ऑफ द विंडो, एंड सच एन इंस्पिरेशन, क्योंकि जैसे जैसे एज बढ़ता है किसी भी एथलीट के लिए उसके ऊपर और भी प्रेशर बनता है। ऐसी सिचुएशन में ऐसे एग्जाम्पल्स को देख के कितना इंस्पिरेशन डिराइव कर सकते हैं। एब्सोल्युटली, और इसलिए अगर आप टोक्यो ओलंपिक्स के मोटो को भी देखें तो उसमें है फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर टुगेदर। खेल हमें प्रेरणा देता है कि हम फिटनेस की ओर जरूर जाएं। तो उम्मीद है कि दूरदर्शन पे अब जब खेलों का महाकुंभ आप देख रहे हैं तो आप भी सुबह जल्दी उठते होंगे, व्यायाम करते होंगे, और कोरोना काल में सावधानी जरूर बरतें। और हमने देखा है जब मीराबाई चानू ने भी अपना पदक जीता था, या कोई भी पोडियम पे जाता है तो उन्हें कोई मेडल पहना नहीं रहा है, वो लेकर आते हैं मेडल, और पूरी सावधानी से मेडल लेकर व्यक्ति, खिलाड़ी अपने आप मेडल डाल लेता है। एब्सोल्युटली, इनफैक्ट स्पोर्ट्स स्पेसिफिक प्रोटोकॉल्स भी बनाए गए हैं ताकि पूरी सावधानी को फॉलो किया जा सके। आपने बहुत अच्छी बात कही मोटो के बारे में, टुगेदर, जो कि इस बार ऐड हुआ है इंक्लूसिवनेस पर एम्फसाइज करने के लिए। हमने देखा कैसे वुमेन को भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया, हालांकि टुगेदर नॉट फिजिकली टुगेदर, बिकॉज सोशल डिस्टेंसिंग भी जरूरी है। तो वेरी इंपॉर्टेंट मैसेजेस बीइंग सेंट आउट थ्रू टोक्यो ओलंपिक्स। जी, और एक और बहुत शानदार मैसेज टोक्यो 2020 में देखने को मिला। उसमें पहली झलक तो हमें नाओमी ओसाका ने ही दे दी थी जब उन्होंने फ्रेंच ओपन विंबलडन में कहीं ना कहीं मानसिक सेहत को लेकर नहीं खेली थी। लेकिन टोक्यो में हमने बीते कल एक बड़ी खबर देखी कि जो स्टार जिम्नास्ट हैं सिमोन गाइल्स, उन्होंने कहा कि मैं टी विमेन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी अमेरिका के, जिसके चलते उन्हें वहां सिल्वर से संतोष करना पड़ा। लेकिन वी रिस्पेक्ट हर डिसीजन, और कहीं ना कहीं मेंटल हेल्थ वापस सेंटर स्टेज पर आ गया है। एंड इट टेक्स सो मच टू से दैट for somebody who had been preparing for this event for 5 years now, and obviously she knows what it is to go through when mental issues do crop up, and a role model that she is, that would give courage to so many people to speak up when they are not fine. Absolutely, and that is what sports is all about. It will bring forth an array of emotions. There will be ecstasy, there could be sorrow, there could be joy, there could be pain. You may miss out on a medal by a fraction of a second. In fact, the other day, Abhinav Bindra tweeted how just a decimal point could actually mean a medal or not. Yeah, 2016, like we saw in Abhinav Bindra's case as well. We mentioned about precision. He mentioned about the floor not being even. So all of these minute things do add up. And because you mentioned about Abhinav Bindra, a very interesting story pops up in my head about his obsession in doing well in a sport. He would not sleep at nights, and if some idea would pop up as to how to improve, he'd get up and try and execute it and see if it's working for him, even if it is 5 AM or 3 AM.
middle of the morning or late at night, whatever you call it. एब्सोल्युटली। चलिए आर्चरी की अगर बात करें तो वहां पर बीते कल तक क्या हुआ आपको जरूर बताएं, क्योंकि काफी अच्छा दिन रहा भारत के लिहाज से, क्योंकि दीपिका कुमारी उन्होंने विमेंस इंडिविजुअल में राउंड ऑफ 64 में सबसे पहले जो भूटान की आर्चर थी कारमा, उनको बहुत आसानी से 6-0 से हरा दिया। आपको पता है कि वहां पर अगर आप एक सेट जीतते हैं तो आपको 2 पॉइंट मिलते हैं। 6-0 मतलब तीनों सेट दीपिका ने जीत लिए और फिर वो पहुंच गई राउंड ऑफ 32 में। उम्मीदें उनसे बहुत ज्यादा हैं क्योंकि वर्ल्ड नंबर 1 रैंकिंग है, लेकिन जब यहाँ टोक्यो पहुंची और रैंकिंग राउंड्स हुए थे 23 जुलाई को, जिस दिन ओपनिंग सेरेमनी भी थी उस दिन सुबह, तब वो 9वें नंबर पे आ गई थी। तो शायद लग रहा था कि कैसा करेंगी दीपिका। राउंड ऑफ 32 में उनका मुकाबला था अमेरिकन आर्चर के साथ, वहां पर वो जीती 6-4 से। थोड़ी चुनौती आई लेकिन जीत गई, लिहाजा वो राउंड ऑफ 16 में पहुंच गई। अब राउंड ऑफ 16 में भी वहां पर अच्छा कर रही हैं, तो आप सोचिए दीपिका से उम्मीदें तो हैं। जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट 2 ओलंपिक्स से हमने देखा है काफी उम्मीद अपने साथ लेकर जाती हैं, लेकिन हमेशा उनके नर्व्स को ब्लेम किया जाता है। दीपिका कुमारी बहुत ज्यादा प्रेशर उनके ऊपर हमेशा रहा है, बिकॉज ओवरऑल हम देखें उनका प्रदर्शन, बाकी टूर्नामेंट्स में देखें प्रदर्शन शानदार लाजवाब, तो इसीलिए एक्सपेक्टेशंस बहुत सारी उनसे बंद जरूर जाती हैं। इस बार रिडेम्पशन का थीम भी साथ में लेकर आई हैं, क्योंकि ऑफ कोर्स प्रूव करना चाहेंगी कि ओलंपिक्स इज नॉट अ माउंटेन टू हाई फॉर हर टू स्केल। एब्सोल्युटली। और अगर मेंस इंडिविजुअल में देखें तो वहां पर जो चुनौती प्रवीण जाधव या तरुणदीप राय की थी वो तो संपन्न हो गई, लेकिन उन्होंने भी शुरुआती राउंड में प्रभावित किया। प्रवीण जाधव ने राउंड ऑफ 64 में आरओसी के जो खिलाड़ी हैं, आरओसी मतलब रशियन ओलंपिक कमेटी, उनको आसानी से हराया 6-0 से। तो लगा शायद प्रवीण और अच्छा करेंगे, लेकिन फिर राउंड ऑफ 32 आते आते वह अमेरिकन आर्चर से 0-6 से हार गए। प्रवीण से बहुत उम्मीदें थी, मिक्स डबल में भी दीपिका के साथ थे, लेकिन आगे नहीं जा पाए। जी एब्सोल्युटली। इनफैक्ट काफ़ी सारी उम्मीदें, लेकिन हमने देखा कि मेंस इंडिविजुअल इवेंट में भी जिस तरह की उम्मीदें थी वैसे नहीं एक्सपेक्टेशन को फुलफिल करते हुए देखे। हालांकि अगर तरुणदीप की बात की जाए तो उनका मुकाबला काफ़ी क्लोज था, लेकिन प्रवीण के केस में काफ़ी लॉपसाइडेड मुकाबले में यूएसए के ब्रैडी एलिसन से हार का सामना करना पड़ा। अमित, लेकिन इस बार टोक्यो ओलंपिक्स में आर्चरी में एक बहुत खास चीज़ हुई है, काफ़ी खास इनोवेशन ट्राई किया गया है। प्लेयर्स के हार्ट रेट को मेजर किया जा रहा है और काफी दिलचस्प है। मतलब हम दूर से देखते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बीत रही होगी, कितने गैमेट ऑफ इमोशंस के साथ प्लेयर्स खेल रहे होते हैं, लेकिन वो इमोशंस कैसे हार्ट रेट में ट्रांसलेट होते हैं वो भी देखने को मिल रहा है। बिल्कुल। देखिए, अगर आप दिल की धड़कन महसूस करें तो आप सुन सकते हैं ये संगीत, और अमूमन जहां तक मेरी जानकारी है 70 से 80 के बीच में नॉर्मल हार्ट बीट होती है। और यहाँ खेलों में हम क्या देख रहे हैं कि हार्ट बीट मॉनिटर हो रही है। इनफैक्ट मैं तो कमेंटेटर को ये भी कहते हुए सुन रहा था कि अगर वो अपनी हार्ट बीट नियंत्रण में रखें तो वो 10 में से 10 आसानी से ले लेंगे। और एक और खेल में, बास्केटबॉल में तो ये तक बात हो रही थी कि कोच देख रहा है अगर किसी की हार्ट बीट मान लो 110 120 से ज्यादा है, वो तुरंत उस व्यक्ति को सब्स्टिट्यूट भी कर देगा। एब्सोल्युटली। मतलब कहते हैं ना कि जो ब्रेन से रिलेटेड या फिर जो ओवरऑल इमोशनली क्या सिचुएशन है उसको पहले मेजर नहीं किया जा सकता था, लेकिन अब ऐसे मेट्रिक्स निकाले जा रहे हैं कि उसे कोरिलेट करके पता किया जा सके कि फिजिकली किस शेप में एथलीट और मेंटली भी किस सिचुएशन में है, और अकॉर्डिंगली ऑप्टिमली यूटिलाइज कर सके अपनी टीम के सारे प्लेयर्स को। जी, तो जो स्कोर तरुणदीप राय के रहे वो भी आपको बता दें। राउंड ऑफ 64 में उन्होंने यूक्रेनियन खिलाड़ी को 6-4 से हराया, तो वो जीत अच्छी थी। लेकिन उसके बाद राउंड ऑफ 32 आते आते थोड़ी मुश्किल हो गई। इजराइल के खिलाड़ी शैनी थे और काफी कांटे की टक्कर वहां पे रही और वो 6-5 से इजराइल के खिलाड़ी जीत गए। लेकिन मेंस इंडिविजुअल में आज जो मुकाबला आप बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, अतानु दास ये बहुत अच्छी फॉर्म में है। और हमने देखा है कि जब टीम इवेंट भी चल रहा था, भले टीम इवेंट में अंततः भारत हार गया, लेकिन बड़े रिलैक्स थे, खुद भी अच्छा स्कोर कर रहे थे और दूसरों को भी वो पूरा स्माइलिंग एटमॉस्फेयर रख के उनको मोटिवेट कर रहे थे। आज इंडिविजुअल कैटेगरी में अतानु दास मुझे ऐसा लग रहा है मेगा कि अच्छा करेंगे। अतानु और दीपिका दोनों ही कंटेंशन में हैं इंडिया के लिए, तो काफी सारी एक्सपेक्टेशन दोनों से ही है, बिकॉज अब दोनों ही बचे हैं, बाकी सारे प्लेयर्स एलिमिनेट हो गए हैं। विमेंस टीम इवेंट में इंडिया को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पाया था, लेकिन मेंस टीम इवेंट में जरूर कंटेंशन में रहे थे। और अब मेडल टैली की तरफ रुख करते हैं। बिल्कुल, ये वो टैली है जिसपे सभी खेल प्रेमियों की नजर रहती है। और यहाँ पर दिलचस्प बात यह है कि मेजबान जापान पहले पायदान पर आ गया है। कुल मिलाकर 13 गोल्ड मेडल, 4 सिल्वर मेडल, 5 ब्रॉन्ज मेडल, total 22 medals. Neck-to-neck contest going on in the medals tally. China is at the second position with 12 gold, 6 silver and 9 bronze to a total of 27 medals. अमेरिका तीसरे पायदान पर 11 स्वर्ण, 11 रजत, 9 कांस्य, कुल मिलाकर 31 पदक। And India finds itself at the 42nd position
and the sole medal coming on the opening day, courtesy Mirabai Chanu in women's weightlifting 49 kg category. This time, ROC is a Russian Olympic Committee, so there's no Russia as such, and they're doing well as well. 7 gold, 10 silver, 6 bronze, total of 23 medals. Australia making its presence felt as well. नंबर 7 पर है, 6 गोल्ड जीत रखा है ऑलरेडी, 1 सिल्वर और 9 ब्रॉन्ज ऑस्ट्रेलिया के नाम. Great Britain with 5 gold, 6 silver, 5 bronze, total 16 medals. South Korea finds itself at the 6th position, 4 gold, 2 silver and 5 bronze. Germany has got 3 gold, 2 silver, 5 bronze, total 10 medals. And of course, all of us are very keen to know about India's position. So India is at number 43 with that sole silver medal courtesy Mirabai Chanu in 49 kilogram weightlifting category. चलिए बैडमिंटन की बात करते हैं। बीते कल मेन सिंगल्स में साई प्रणीत की चुनौती संपन्न हो गई और वो तो अब घर लौटेंगे, लेकिन पीवी सिंधु से उम्मीदें बरकरार हैं। अब तक सिंधु का सफर टोक्यो 2020 में कैसा रहा? देखिए, जो पहला मुकाबला उन्होंने खेला वो इजराइल की प्रतिद्वंद्वी थी और बहुत आसानी से 21-7, 21-10 से पीवी सिंधु वो मुकाबला जीत गई थी। और उसके बाद जो मुकाबला उन्होंने कल खेला वो हांगकांग के खिलाड़ी चियोंग के साथ था। 21-9 से पहला सेट बहुत आसानी से जीती, दूसरे में जरूर थोड़ा सा संघर्ष करना पड़ा, लेकिन 21-16 से वो भी जीत गई। लिहाजा ग्रुप स्टेज में दोनों मुकाबले जीतकर वो पहुंची अब डेनमार्क के खिलाड़ी से आज जो खेलेंगी। सिंधु से बहुत उम्मीदें रहती हैं हर बार जी, और नॉकआउट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है और काफी एक्सपेक्टेशंस जैसा आपने मेंशन किया, बिकॉज रियो ओलंपिक्स में सिल्वर मेडलिस्ट रही थी, इस बार गोल्ड पर निगाहें होंगी, रेनिंग वर्ल्ड चैंपियन है। और जैसा आपने मेंशन किया कि पिछला मुकाबला जो कि कल देखने को मिला था गान यी के खिलाफ, हमने देखा काफी सारे क्रॉस कोर्ट स्मैशेस और अपने वाइड अरे ऑफ स्ट्रोक्स उन्होंने एग्जिबिट किए, दिखाया कि कितनी डोमिनेंट हो सकती हैं वो अपने दिन पर। इसके अलावा जिसके खिलाफ वो उतर रही हैं, 4-1 का रिकॉर्ड है मियां के खिलाफ। अच्छा। वर्ल्ड नंबर 12 डैनिश प्लेयर है और शानदार परफॉर्मेंस हालांकि उन्होंने थाईलैंड ओपन में दिखाया था पीवी सिंधु के खिलाफ। एक जो जीत उनके नाम है वो इसी साल आई, लेकिन बदला ले लिया मार्च में और मार्च में वापस से सिंधु ने अपने नाम जीत रखी। और एक बहुत रोचक बात है, आपको याद होगा रियो 2016 ओलंपिक्स के बैडमिंटन फाइनल में पीवी सिंधु का मुकाबला किसके साथ था? स्पेन के खिलाड़ी कैरोलिना मारिन के साथ, जो कि अंततः फिर गोल्ड जीत भी गई थी। इस बार चोटिल होने के कारण कैरोलिना मारिन नहीं है, तो उससे न केवल सिंधु बल्कि जो अन्य शीर्ष खिलाड़ी हैं उन पर भी कहीं ना कहीं असर पड़ेगा। और भारत के लिहाज से देखें तो शायद सिंधु के लिए थोड़ा आसान भी हो जाए, हालांकि कोई भी मैच आसान नहीं होता। लेकिन मेंस डबल्स की अगर बात करें तो वहां पर एक हार्ट ब्रेक जरूर देखने को मिला। देखिए, हुआ यूं कि मेंस डबल्स के ग्रुप में 4 टीमें थी। वर्ल्ड नंबर 1 टीम इंडोनेशिया थी, उनसे तो अपेक्षा थी कि वो सारे मुकाबले जीतेंगे, लेकिन वो चाइनीज ताइपे से एक मुकाबला हार गए। और चाइनीज ताइपे वर्ल्ड नंबर 3 टीम थी जिसको मेंस डबल्स में भारतीय जोड़ी ने हराया था। लेकिन 2 मुकाबले जीतने के बावजूद जब आप फाइनली देखते हैं कि कितने पॉइंट कितने एंड तक जाते हैं डेसिमल तक, वहां पर हार्ट ब्रेक हुआ। और जो हमारी जोड़ी थी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की, बावजूद इसके मेगा कि हम चाइनीज ताइपे से जीते, ग्रेट ब्रिटेन से जीते, लेकिन हम इंडोनेशिया से हारे थे, हम क्वालिफाई नहीं कर पाए अगले दौर के लिए। And that loss to the Indonesian pair did cost India pretty heavy because we saw that overall also against this pair, the Indian pair has 0-9 record, so it's not really good. And of course we know that the Indonesian pair has been very dominating in badminton, and probably that loss did cost India dear, because eventually it was not about the number of wins. There were 3 teams tied with identical points, but it was about the minutest things that do count when there is a tie in terms of number of points. बिल्कुल, और खेल हमें सिखाता है कि जो ये जीवन का ज्वार भाटा है, उतार चढ़ाव है, इन सबको गले लगाते चले। यही तो टोक्यो ओलंपिक्स है, यही खेलों का महाकुंभ है। शूटिंग में आज निगाहें मनु भाकर पे रहेंगी, क्योंकि जब वो 10 मीटर पिस्टल इवेंट में आई और उनकी गन मैल फंक्शन कर गई, बहुत दुखद रहा होगा हम सब खेल प्रेमियों के लिए भी और सोचिए मनु के लिए भी। लेकिन आज उनके पास मौका है 25 मीटर पिस्टल पे बीती बातों को भुलाकर एक नया चैप्टर वो खोलें। और साथ ही राही सरनोबत की अगर बात करें तो कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने पदक जीता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो कई सालों से हैं, अनुभवी हैं। और इंडिविजुअल प्रतिस्पर्धा में आज दोनों मनु और राही से हम
आकांक्षा तो कर सकते हैं। जी, 2 क्वालिफिकेशन होगा, पहला 30 शॉट्स का आज और उसके बाद कल भी हाँ जी। 30 शॉट्स का, और उसके बाद इवेंचुअली फाइनल्स खेला जाएगा। आपने राही सरनोबत की बात की, एशियन गेम्स में महिलाओं के लिए पहला गोल्ड इन्होंने जीता था। काफी टाइम से खेल रही हैं, सीजन कैंपेनर है, हालांकि काफी अंडरस्टेटेड है और लो प्रोफाइल मेंटेन करती हैं, बिल्कुल फोकस अपनी परफॉर्मेंसेस और अपने स्पोर्ट पर कंसिस्टेंटली डिलीवर करते आ रही है। यही एक मेडल बचा है, शायद अपना फाइनल फ्रंटियर मानकर उतरना चाहेंगे इसके लिए। जी बिल्कुल, क्योंकि अगर आप महिला शूटिंग में अब तक के नतीजे देखें तो मनु और यशस्विनी 10 मीटर एयर पिस्टल में क्वालिफाई नहीं कर पाई थी फाइनल राउंड के लिए। 10 मीटर एयर राइफल की बात करें तो वहां पर भी इंडिविजुअल्स में अपूर्वी चंदेला हो, ईला हो, वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाई थी। और अभी एक और इवेंट जो होना है वो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस इवेंट है, जहां पर चुनौती रखेंगे भारत की ओर से तेजस्विनी सावंत और अंजुम मुदगिल, तो वो भी एक इवेंट बचा है अभी। एब्सोल्युटली, क्योंकि काफी बात हम कर चुके हैं हार्ट ब्रेक की, और खास करके आपने जब मनु भाकर की बात की, सौरभ चौधरी के साथ उनका जो 10 मीटर पिस्टल में पेयर था, शानदार प्रदर्शन अदरवाइज रहा। अब तक जो 6 वर्ल्ड कप्स खेले थे उसमें 5 में गोल्ड जीता, 1 में सिल्वर जीता, तो बहुत सारे एक्सपेक्टेशंस ऑफ कोर्स थे उन पर, लेकिन मनु का खास करके परफॉर्मेंस मैचअप नहीं कर पाया जो एक्सपेक्टेशंस थे। लेकिन दे आर जस्ट टीनेजर्स, बहुत सारे ऐसे ओलंपिक्स उनके सामने हैं, और सबसे बड़ी बात मनु के पास तो अभी भी 25 मीटर्स में मौका है। बिल्कुल, बीते साल 2020 में जब खेल पुरस्कार दिए गए थे तो मनु भाकर और सौरभ चौधरी दोनों को अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अभी तो बहुत यंग हैं और ये सारा अनुभव जीवन में उनके बहुत काम आने वाला है। मेन शूटिंग की बात करें तो सौरभ चौधरी और अभिषेक वर्मा 10 मीटर एयर पिस्टल में उन्होंने भारत की ओर से चुनौती रखी थी। और स्कीट की अगर बात करें तो महराज अहमद खान और अंकित बाजवा ने चुनौती रखी थी, वो फाइनल्स के लिए क्वालिफाई नहीं कर पाए थे। 10 मीटर एयर राइफल में दीपक कुमार और दिव्यांश सिंह पवार, उनका भी निराशाजनक प्रदर्शन रहा क्योंकि अपेक्षा बहुत ज़्यादा थी। और जो इवेंट वहां पर अभी रहता है 2 अगस्त को होगा, उसमें संजीव राजपूत और ऐश्वर्या तोमर 50 मीटर राइफल 3 पोजीशंस में अपनी चुनौती पेश करेंगे। एब्सोल्युटली, और अभी भी शूटिंग में एक्सपेक्टेशंस बंधी हुई है, बिकॉज जब भी हम शूटिंग की बात करते हैं इस ओलंपिक्स के कॉन्टेक्स्ट में, 2020 टोक्यो ओलंपिक्स के संदर्भ में, तो हम ये याद करते हैं कि 4 मेडल्स इंडिया के लिए शूटिंग में ओलंपिक्स में आए हैं। और अभिनव बिंद्रा, द इल्यूसिव गोल्ड जो इंडिया ने जीता है इंडिविजुअल्स इवेंट में, अभिनव बिंद्रा के बदौलत जीता है। तो शूटिंग से हमेशा ही एक्सपेक्टेशंस रहते हैं, और इस बार और भी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज काफी यंग स्क्वाड, काफी यंग कंटिंजेंट भेजा था इंडिया ने, और विद इन दीज यंगस्टर्स इतना ज्यादा कंपटीशन रहता था कि एक्सपेक्टेशंस ऑब्वियसली इसीलिए भी स्काई हाई थे। जी, और एक्सपेक्टेशंस स्काई हाई मेंस हॉकी टीम से भी रहती है। ग्रुप ए में अगर हम देखें तो भारत ने अपना पहला मुकाबला न्यूजीलैंड से 3-2 से जीता था। दूसरा मुकाबला भारत का ऑस्ट्रेलिया के साथ था, उसमें ऑस्ट्रेलिया 7-1 से विजयी रहा। और सोचिए, 7-1 से करारी शिकस्त खाने के बाद तीसरे मैच में भारत ने शानदार वापसी की जब भारत ने स्पेन को 3-0 से हराया। अब ग्रुप ए में आज भारत का मुकाबला है नंबर 4, चौथा मुकाबला अर्जेंटीना के साथ। अभी बजे हैं 4:53। अब से तकरीबन 1 घंटे बाद 6 बजे सुबह आप दूरदर्शन स्पोर्ट्स पर जरूर देखिएगा ये मुकाबला, जहां पर भारत और अर्जेंटीना आमने सामने होंगे। अगर भारत यहां पर जीत दर्ज करता है तो भारत ये तय है कि टॉप 4 में आएगा और क्वार्टर फाइनल्स में अपनी जगह बना जाएगा। जबकि अभी एक मुकाबला और रहता है भारत और मेजबान जापान में, लेकिन देखना दिलचस्प रहेगा मेगा कि सिर्फ टॉप 4 में ना आए, वो कोशिश करे कि नंबर 2 पे आ जाए, ताकि फिर वो पूल बी के नंबर 3 टीम से आए, क्योंकि मैं मान के चल रहा हूं कि ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे आएगा। जी, ऑस्ट्रेलिया ऑलरेडी क्वालिफाई भी कर चुका है, और जो आपने मेंशन किया वो मार्जिन 1-7 का काफी बड़ा मार्जिन था, काफी वो डिवास्टेटिंग हो सकता है साइकी पे, लेकिन इंडिया ने बहुत अच्छे से बाउंस बैक किया स्पेन के खिलाफ जीत दर्ज करके। और श्रीजेश जो कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मैच में थोड़ा स्ट्रगल करते हुए नजर आए, इंडियन गोलकीपर ने एक बार फिर से अपनी ही पुट हिज स्टैम्प ऑफ अथॉरिटी इन द गेम अगेंस्ट स्पेन। और अब अर्जेंटीना के खिलाफ इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2016 की गोल्ड मेडलिस्ट रही अर्जेंटीना, लेकिन उनके खिलाफ भी 2016 में भारत ने जीत दर्ज की थी। इस बार भी मई में खेल चुके हैं, तो काफी फेमिलियर है एक दूसरे के स्ट्रेंथ्स और वीकनेसेस से दोनों ही टीम। जी, दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट मेगा मेंशंस कि 2016 में भी भारत ने अर्जेंटीना को ग्रुप मुकाबले में हराया था, तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजिकल एडवांटेज तो भारत के पास होगी। बॉक्सिंग की अगर बात करें तो मेरी कॉम का मुकाबला आज आपको देखने को मिलेगा। अब तक राउंड ऑफ 32 में बहुत आसानी से डोमिनिका की हर्नांडिस को उन्होंने 4-1 से पहली बाउट में हराया था। आज उनका मुकाबला कोलंबिया की बॉक्सर वेलेंसिया से होगा।
तो ये मुकाबला जरूर देखिएगा। और बात अगर पूजा रानी की करें तो बीते कल मिडिल वेट कैटेगरी में पूजा का प्रदर्शन भी काफी अच्छा रहा। उन्होंने अल्जीरिया की जो बॉक्सर थी चेब, उनको 5-0 से हरा दिया। तो पूजा रानी लुक्स वेरी स्ट्रॉन्ग।